So today's, I think, LC contest had fairly like mainly two problems, like these two problems, and both of them are like fairly likely to kind of come in any coding test and all as well. So both of them were good problems. Okay, so I'll talk about some very closely related like problems similar to third and fourth, and some more ideas that can be created on these problems, so that even if you have solved all problems, maybe you will get some more idea कि अच्छा ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये भी एक idea बन सकता है, possibly, right? So let's quickly go through the first one. I don't think it will take much of time to solve the first one. Simply, there are a bunch of minus ones. For the minus ones, find the max of the column and replace it with the max of that column. You know? So that's directly straightforward. Constraints were super low, so you didn't even have to maintain the max in each column. So like go through everything, right? Step one will be find the maximum value in each column. So you go through every column and you find if it's not equal to -1, then you take the max of that cell in that column and you can save it in a vector, and then go through every column and then replace all the -1 with the max in the column and return the matrix. 3 steps, simple 3 steps. Is this clear? I don't think there is much to explain in this problem. Max nikalo, save it in a call for every column in this, and then go through this. Okay, M is the number of rows, N is the number of columns. Okay, straightforward. This is just looping. Okay, the only idea was that you can maintain the column maxes separately. For anybody who is starting off, I think for them this makes sense. Save it over here. Okay, save the column maxes. Okay. Now, like there is this third problem, which is second problem, which is number of subarrays that match a pattern. So I will explain the third one, like this one, and we will use the best possible algorithm, obviously, to solve this one. So I'm skipping on this one because this is exactly same with just different constraints. So you can use a brute force kind of matching for this one, but then we will go to this and see how you can solve this problem. So this is same as that. So I'm skipping this problem for now. And we will discuss it over here. The logic will remain same. It's just the algorithm you use that makes you solve the first or the second version. Take care. Okay, I think now we are down to the two problems which came in the contest. So this is the first problem, which is maximum palindrome after operations, right? So the question says that you can basically swap any two characters, I, J, any ij you can choose, any xy you can choose, and you can swap the characters and return in maximum number of palindrome words that you can create. So it was also in Atlassian, third one. Achha, this is same question as Atlassian coding test, kya? Somebody is mentioning. Oh, nice. When source, well, SS hoga maybe, but if you have a global link which anybody can access, then you can share in the chat. This is a fairly good problem. This is a greedy problem, so this can come in a test. This is not ad hoc, this is not constructive, so this can come in a coding test. And similarly, the next one also, like a very similar problem has come before, and I'll like show you that problem also if required. Okay, there is a string problem which has come before, similar to that. So the question that is being asked is, operation that is given to you is you can choose ij, so word I, word j, and I and j can be same also. तो सबसे पहले तो ये ऑपरेशन डिकोड करना है. सबसे पहले the first thing that you should try to look at in these cases is how does the operation actually correlate to, है ना? नहीं नहीं, ये सब चीज तो तुम बोला ना कि सबसे पहले मतलब whenever you see a problem, right, don't directly jump to topic. ये तो एक weird सा चीज है. I would not have known कि इससे कैसे होगा. तुम टीएलई मतलब डीपी कैसे यूज करोगे? इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ सा प्रॉब्लम. देखो ध्यान से सुनो. Whenever you see a problem like this, right, सबसे पहले होता है ना कि जब पहले होता है कि कुछ नोन चीज है, सवेरे काउंट करो, सब सीक्वेंस काउंट करो, दीज आर नोन थिंग्स. ये एक अजीब सा ऑपरेशन दिख रहा है. सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इज यू हैव टू डिकोड द ऑपरेशन कि इसका मतलब क्या है. एंड द ओनली थिंग दैट दिस मींस इज कुछ भी मैटर नहीं करता है, बस वर्ड्स के लेंथ फिक्स्ड है. यू कैन स्वैप कैरेक्टर्स व्हिच मींस एवरीथिंग इज इन योर हैंड, यू कैन प्लेस देम बैक. Unless you decode this particular thing, there is no way you can solve this problem. Unless you decode कि यहाँ पर एक वर्ड है और यहाँ पर एक वर्ड है, you can choose any character between the same word or different words and you can swap things. That means you can
take all the characters in your hand and then place it back any way you want. Does this make sense? सबसे पहला चीज ये डिकोड करना पड़ता है कि ये ऑपरेशन तुम्हें क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट दिस प्रोवाइडिंग इज इट इन सम सेंस, राइट? सो इफ दैट इज नॉट द केस देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. वो डीपीवीपी तो बाद में आता है, सबसे पहले ऑपरेशन बोल क्या है, क्योंकि ये एक अजीब सा ऑपरेशन दे रखा है, राइट? सो वर्ड लेंथ्स आर फिक्स्ड, बट तुम इसके कैरेक्टर्स को उठा ले सकते हो हाथ में एंड देन यू कैन प्लेस देम बैक. सो विच मीन्स इट्स द कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज दैट मैटर. हाँ एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ, राइट? कि लेंथ फिक्स्ड है बट सारे वर्ड्स तुम्हारे हाथ में है. मतलब तुम स्वैप करना मतलब हाथ में लेकर के तुम उसको वापस प्लेस कर सकते हो. उसके बाद यू कैन सॉल्व इट इन एनी पॉसिबल वे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ये हो गया तो देन यू कैन थिंक अबाउट पैलिंड्रोम्स एंड स्टफ कि पैलिंड्रोम बनाए कैसे. सो इट ऑब्वियसली लीड्स टू कि सारे वर्ड्स तुम्हारे हाथ में है, तो इसका मतलब यू कैन गो अहेड एंड बिल्ड अ फ्रीक्वेंसी मैप, राइट? अ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग दैट यू कैन डू इन सच प्रॉब्लम्स इज build a frequency map of the characters, that you will pick the characters and build कि ये कितनी बार है, ये कितनी बार available है, B कितनी बार available है and so on, right? That you can build very easily. उसके बाद you will try to think कि how can I build free palindromes out of it. Okay, so first of all let's think about words. अगर एक word odd length का है, obviously there will be a some character over here which is like available in a odd manner. मतलब एक कैरेक्टर यहां पर अलग से अवेलेबल रहेगा कुछ तो भी, राइट? अगर इवन लेंथ है तो यहां पर कोई ऑड कैरेक्टर की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सिंपली मैच दीज टू एंड यू विल बी डन. ठीक है, ओके. तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अब यहां पर एक ग्रीडी स्ट्रेटजी का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है कि तुम्हारे पास कुछ ऑड लेंथ है, कुछ इवन लेंथ है, राइट? देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स व्हिच आर ऑड लेंथ, इवन लेंथ, ठीक है? देयर आर सम कैरेक्टर्स व्हिच हैज फ्रीक्वेंसी एज ऑड, सम इवन, है ना? तो नाउ दिस इज समथिंग दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी जनरेशन कि भाई मैं पहले ऑड वालों से लेके ऑड में भरूंगा, फिर उसके जो बचे हुए इवन वालों को इवन से भरूंगा या ऑड से भी भर सकता हूं, क्या पता. मतलब देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रैटेजी दैट कैन बी जनरेटेड, राइट? So how do you clearly think about such problems? That is what leads to a better problem solver. मतलब जल्दी करने के लिए ना ये सब चीजें तुम्हें जल्दी सोचनी पड़ेगी. That how can I think about such greedy strategies very very quickly? तो सबसे पहले पता है क्या सोचना होता है? क्या obvious है? मतलब what generally when I see such kind of problems, what I think about is what is obvious कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा. For an example, when I have a odd like a even length kind of thing over here, I will have to place इस पे सेम कैरेक्टर, राइट? आई विल हैव टू प्लेस इस पे कोई भी एक सेम कैरेक्टर फॉर श्योर. ठीक है, आई विल हैव टू प्लेस सेम कैरेक्टर इनटू दीज. तो ये जो ये जो इवन वाला पार्ट्स है, मतलब ये जो ऑड वाला लेंथ है उसमें भी बीच को छोड़ के ये इवन लेंथ ही प्रेजेंट है. मतलब मेकिंग अ पैलिंड्रोम ऑफ एक्स लेंथ वेयर एक्स इज ऑड इज सेम एज put something in the middle and it's like x minus 1 which is an even. So this is similar to this only, except that you have to place one more character in middle which can be anything. So it's like a buffer for me. Does this make sense? कि x length का odd बनाना palindrome is same as x minus length का even बनाना plus I have to put one buffer. Put one buffer. कोई एक buffer character मुझे use करना पड़ेगा इसके लिए. Okay. So now what I have to think about is there is x. ठीक है, डीपी तो पता नहीं बनी कैसे रहा है. मतलब डीपी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से, मतलब इसमें डीपी क्या है, व्हाट इज द डीपी? क्योंकि लेंथ तो मैटर करेगा. इसमें कोई डीपी नहीं सोचना है. डीपी के 5 ही फॉर्म है, वो 5 फॉर्म के बाहर नहीं है तो नहीं है भाई, कोई डीपी भी नहीं है. ठीक है, यस. हाँ, प्रायोरिटी क्यू मैटर्स, यस यस, आई कम इनटू दैट. वो तो ग्रीडी वाला पार्ट हो गया. बट देन पहले एक ऑब्जर्वेशन सोचना है कि ऑड लेंथ इवन लेंथ दो चीज हैंडल करना इज डिफिकल्ट. बहुत स्ट्रेटेजी हो रहा है. सो ऑड लेंथ इज सेम लाइक नीड अ बफर. मतलब ऑड लेंथ के लिए क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास कुछ है जो इवन लेंथ का ही है बट उसके लिए एक बफर तुम्हें वहां पुट करना है. अच्छा देखो, बफर मिलना तो बहुत ही आसान लग रहा है मुझे, इजंट इट? बफर कैरेक्टर्स तो हम लास्ट में जो भी बचा कुचा है उसको पिक कर सकते हैं, राइट? गेटिंग बफर कैरेक्टर्स इज सुपर इजी. इट्स द प्रॉब्लमेटिक इज कैन यू मेक द थिंग्स मैच ओवर हियर. दैट इज द मोर डिफिकल्ट पार्ट.
अगर मैचिंग हो जाएंगे तो आई कैन गेट मोर एंड मोर स्टफ, बट देन ये बफर कैरेक्टर तो जो भी कुछ बचा कुचा आई कैन पुट इट देयर एंड मेक इट वर्क, इजंट इट? क्या ये समझ में आ रहा है? मेकिंग टू कैरेक्टर्स मैच इज द हार्डर बिट। तुमने सब कुछ इसको इसको मैच करा दिया, इसको इसको मैच करा दिया, इसको इसको मैच कर दिया, जो भी बचा वो यहां डाल देंगे, है ना? वट एवर यू आर नॉट यूजिंग इन द मैचिंग्स, इन द इवन लेंथ और ऑड लेंथ, जहां पर दो कैरेक्टर को मैच करना उनको मैच करा दिया, इफ वट एवर इज लेफ्ट कुछ भी वहां बफर में डाल दूंगा मैं, इट डजेंट मैटर टू मी। सो ये बफर फिल करना इज ऑलवेज पॉसिबल, आई डोंट केयर अबाउट, है ना? इज जस्ट दैट आई हैव टू थिंक अबाउट दिस x - 1 इवन लेंथ, कैन आई मेक दिस और नॉट, बिकॉज जो बचेगा उससे मैं बफर भर ही दूंगा फॉर श्योर कुछ ना कुछ करके। ओके, तो इट्स जस्ट अबाउट कि यार अगर मेरे पास ये इवन लेंथ लाइक x लेंथ का अगर ऑड है तो आई हैव टू केयर अबाउट कैन आई मेक अ x - 1 लेंथ इवन टू फिल दिस, एंड अगर x लेंथ का अगर इवन लेंथ का है तो आई हैव टू फिगर कैन आई मेक अ x लेंथ का इवन का पैलिंड्रोम, है ना? सो इट्स लाइक फिगरिंग आउट, okay, there is like 3 ka, 2 ka, 4 ka, and then 5 ka. So this is same as saying forget about this for now, forget about this for now, like whatever will be left I will fill with that. Can I make this match? So that is like potential length 2. Can I make these two match? Potential length 2. Can I make these, or I'll say how many matchings do I need? I need one matching. How many matchings do I need? One matching. To make this fully a palindrome I have to match this and have to match this. So how many matching characters do I need? 2. For this how many matching characters do I need? 2. जो भी बचेगा उससे I will fill these x characters, so 2. So every character, every like palindrome has how many matching character requirements in that. ठीक है? अब it obviously makes sense that if you have only 2 A's, 2 B's and then everything is C, D, E, F, then you will try to use these to the smaller ones कि जितने छोटे छोटे भर दो उतना better है. So it makes sense to always try to fill the small length palindromes first than the later ones, because यहाँ पर A B करोगे, B A करोगे तो it will only fill one, but बाकी कुछ नहीं भर पाएगा. So it always makes sense to build the smallest palindrome first, because the metric for us, like how will we get the score, is basically maximum number of palindrome words. तो जितने सारे बना लो उतने better है, ठीक है? तो this is always a common strategy. Whenever you have to maximize the number of objects, you always greedily choose the minimal cost first. हमारे पास कुछ number of even characters होंगे जिसका पेयरिंग करके available है हमारे पास. We will try to use those currency to fill these things first. जो बचा वो अपने आप भर जाएगा. ये सब चूज करने के लिए मैंने DPO, ये सब डेंजर चीज तुम लोग करते हो ना, क्या क्या भगवान जाने. ये सब डेंजर चीज नहीं करनी चाहिए. तो ये जीपीटी तो नहीं सॉल्व कर पाया था. सो इफ यू गाइस वर एबल टू सॉल्व इट, कांग्रेट्स, यू गाइस आर बेटर देन जीपीटी. ठीक है, आई ट्राइड इट जीपीटी से, आई वाज वेरी बोर्ड, तो मतलब मेरे लिए कोड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, सो आई जस्ट सॉल्व ऑल फॉर टुडे. गुड, ठीक है, नाइस. So today's last one was strings, very similar to the last contest also. I think we discussed very similar Z algorithm ka question. Exactly same. The previous one was actually harder than this. If you know what to look for, then this last problem was easier today. बाद में समझ आया greedy चल. I mean technically people would be able to do it because मिल जा रहा था उसका, मतलब मिल नहीं रहा था, मतलब it was like a known matching problem, no? So it's just template. तो इसमें क्या करेंगे, जल्दी से कोड कर लेते हैं फटाफट. आई थिंक इट विल बी सुपर सिंपल टू राइट द कोड, और इफ एनीबॉडी वांट्स टू वॉलंटियर यू कैन सेंड मी द कोड. मतलब कुछ है नहीं इसमें, मैप बनाना है, कैरेक्टर, फ्रीक्वेंसी, all the frequency of the maps I can put into this, and set नहीं, multi set make event डाल, multi set of integer, इसमें सारे मतलब लेंथ्स डाल देंगे, even lengths जो रिक्वायरमेंट है. So what I will do is for auto v in words, I'll not copy it, so I'll just use reference for. So these are the strings, v is the string, in that string I'm going to the characters. So for each character, frequency of u plus plus, that character is available once, and then even length, like the requirement length will be v dot length
by 2. I suppose that should be enough, right? So this is what we will do. And int matching equal to 0. How many matching characters do I have? And this is like how many lengths, how many matchings will I require to make this palindrome? So I'll go through all the frequencies and take by 2. Like अगर 3 available है तो 2 pairing बनेगा, 4 available है तो 2 pairing बनेगा. So for auto v in frequency matching characters plus equals to v dot second by 2. And then I have how many matching characters that I have in this. I can simply now go through even length in increasing order and see how many I can like take. So I mean, in fact, you actually use vector also. You don't even need this sort even length requirement. And it becomes like very standard problem. तो सेट वेट की कोई जरूरत ही नहीं, सॉर्ट कर लो और कितने सारे इंटीजर आंसर इक्वल टू 0 for, and it's like how much budget do you have? You have this much budget, and you have to like make sure that how many items you can get, you will try to get as many as possible. So I'll just go through all the characters for auto v in vector है ना, हाँ जा सकते हैं v और elements in the even lengths जितना चाहिए इसके लिए, if matching is greater than equal to the current requirement of the current item. So matching में से उतना subtract कर लेंगे and answer plus equal plus कर देंगे कि we can take this item, we can build this palindrome, and I can just simply return answer. Yeah, that should be it. Okay. Insert नहीं होता है ना, वो push back होता है. Sorry, I was using multiset earlier. No. Yeah, seems simpler, I think. Yeah, got it accepted. See how clean. So think about this. You are not over here in these sessions to only learn कि approach क्या है. कोडिंग स्टाइल सीखने की कोशिश करो. देखो मैंने कितना क्लीन कोड लिखा है. कुछ कुछ तुमने कितने केसेस लिखे होंगे, है ना? तुमने कितने केसेस लिखे होंगे बैठ के कि ये करो वो करो, बट देन कितना क्लीन कोड है और वो एक्सेप्ट हो रहा है. एंड आई वाज मतलब आई एम ट्राइंग टू प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय ब्रेन. तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि अभी क्यों हो गया ऐसी चीजें, बट मैंने प्रूव कर दिया है. ओके, माइन वाज 100 लाइंस. अच्छा, और भी छोटा कर दिया क्या तुमने? तो तुमने काउंट फ्रीक्वेंसी मेंटेन करा है. नाइस नाइस. ओके, वही बोला ना मैंने. देखो, this is what we proved, that x length odd character is same as satisfying x minus 1 length even character. ठीक है, x length odd character 1 2 3 4 5 इसको सेटिस्फाई करना इस सेम एज इसको भूल जाओ, इसको सेटिस्फाई करना. बिकॉज इसको अगर हमने सेटिस्फाई करा दिया, ओके, सो जो मतलब एनीवेज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज इक्वल टू द लेंथ दैट इज गिवन टू अस. मतलब सारे स्ट्रिंग्स में तो कैरेक्टर्स था ही, तो तुमने जितने भरे उसको भरने के बाद कुछ तो कैरेक्टर्स बचेंगे ही. सो जो भी बचेगा वो मैं यहां डाल सकता हूं ना. बफर कैरेक्टर की कमी नहीं है मेरे पास. आई डोंट हैव अ लाइक इनसफिशिएंसी टू हैव वन कैरेक्टर ओवर हियर. ओके, तो कुछ भी मैं यहां डाल ही दूंगा. तो बस एक्स लेंथ ऑड को तुम एक्स माइनस 1 लेंथ बना दो एंड तुम्हारा क्वेश्चन कोड करना कितना आसान हो गया. इजंट इट? ये समझ में आ रहा है? A lot of times such observations help you write code काफी simply instead of doing so much of effort, है ना? मतलब मेरे को लगता है कि तुम लोग सोचते हैं सिर्फ लॉजिक सीखना है. कोड करना सीखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है. मतलब हाउ डू यू मेक कोड्स क्लीन, इजी एंड एफिशिएंट? बिकॉज आई कैन टेल यू nobody can become super good coder मतलब beyond a certain point unless they are writing clean and like good logic code. मतलब इतना सारा लिख के if else लिखोगे ना, ह्यूमन एरर है भाई, 25 20 30 लाइन में एक गलती तो पक्का है. ठीक है, एंड यू विल बाल नौसे जाओगे टेस्ट में कि भाई क्यों नहीं पास कर रहा है. ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई एंड लर्न ओवर टाइम. पिक दी स्टाइल्स. बढ़िया तो था ये. मुझे भी अभी क्लिक किया एक्चुअली. मैंने सोचा नहीं था, मतलब ऑब्वियसली मैंने सॉल्व नहीं किया था. मैंने बोला ना कॉन्टेस्ट में सॉल्व नहीं किया ये क्वेश्चन, तो अभी मैंने सोचा ये चीज, बट देन इट्स फेयरली गुड. हाँ वो करते हैं.
ये क्या क्वेश्चन है? यस यस, आई डू दैट, आई डू दैट। चलो ये मैं कोड भी तुम लोग को देता हूँ। अरे डीपी कहाँ से आ गया? लीड कोड डिस्कस कर रहे हैं, डीपी का क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? ठीक है, ये हो गया सिंपल। हाँ मतलब ये देख के मुझे भी लग रहा है, मैंने भी सोचा नहीं था, मैंने सोचा कि और लिखना पड़ेगा कुछ, बट अपेरेंटली हो जा रहा है। अभी मैंने सोचा बस ये चीज। ओके, नेक्स्ट क्या है बचा हुआ? बचा कुचा बस अभी यही प्रॉब्लम बचा, एक इंटरेस्टिंग वाला। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ फेयरली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम्म, और वाला चेक करने से तो कोड लंबा हो जाएगा फालतू का, कि वो एक कैरेक्टर लेकर के फिर उसमें डाल के देखो कि वो बन रहा है नहीं बन रहा, वो सब वगैरह वगैरह, है ना? ओके, इसमें क्या बोला है? So this is a very very standard style, okay? मतलब not just this problem, there are like more problems of this similar class. I'll teach you guys once, ठीक है? So this is basically saying कि पैटर्न यहाँ पर दे रखा है, एंड पैटर्न का एक मीनिंग है, लाइक इफ इट्स अ वन देन द गैप्स नीड्स टू बी दिस। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट विल बी वे इजियर, ठीक है? गंदा एग्जांपल है ये लेते हैं। उस एग्जांपल का तो कोई मतलब ही नहीं है, सारे ही तो हो जाएंगे, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली सेइंग लाइक, इट्स लाइक, ये पता है क्या बोल रहा है? दिस इज सेइंग इट शुड इंक्रीज, दिस शुड से सेम, एंड दिस इज लाइक दिस शुड डिक्रीज, राइट? तो यहां पर हमें ढूंढना है कि बिटवीन पेयर्स कहां पर ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो naturally this makes sense to convert it into gaps. This is a very very common concept in a lot of problems. जब तुम्हें पेयर वाइज नेबर्स को देखना होता है ना, तो यू कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू एरे वेयर इट्स अबाउट द गैप्स, कि भाई यहां पर इंक्रीज कर रहा है, यहां इक्वल है, यहां डिक्रीज कर रहा है, यहां इंक्रीज कर रहा है, यहां फिर इंक्रीज कर रहा है, यहां मतलब इन दोनों के बीच में फिर ये इक्वल है, फिर यहां डिक्रीज कर रहा है। डज दिस मेक सेंस? इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन में बोल रखा है, द क्वेश्चन वाज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हेन यू सी दिस प्रॉब्लम, कि पैटर्न अगर वन है तो द नंबर शुड इंक्रीज, द इफ इट्स जीरो द नंबर शुड बी इक्वल, इफ इट्स माइनस वन इट शुड डिक्रीज, राइट? सो यू कन्वर्ट द गैप्स, यू लुक एट द गैप्स ऑफ द एलिमेंट, कि भाई इंक्रीज कर रहा है, इक्वल कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दिस कर रहा है, दिस, राइट? इस टाइप का रहता है। सो यू हैव टू थिंक इन दोस टर्म्स इटसेल्फ, ओके? कि ये पैटर्न तुम्हें इसमें मैच करना है, एंड यू कैन वेरी वेरी क्लीनली सी कि भाई ये यहाँ पर और यहाँ मैच हो रहा है, तो टू है आंसर। कैन वी गो बैक एंड सी? टू इज द आंसर। समझ गए क्या? यही हमें करना था क्वेश्चन में, कि ये स्ट्रिंग बनाओ, ये स्ट्रिंग बनाओ, इसको इसमें ढूंढो। और तुम्हें ये एरो वैरो अजीब लग रहा है तो नाम दे दो यार, ए बी सी, ए बी सी, और इसको ए बी सी दे दो, कुछ भी दे दो, लाइक बिल्ड अ स्ट्रिंग आउट ऑफ इट। And it necessarily doesn't need to be string, like पता है Z algorithm, KMP algorithm doesn't need to have a string array, it can be a number array also, by the way. मतलब if you guys thought कि it only works on strings or characters, quote unquote, not really. It can, the logic doesn't really depend on it being a character, it's just a matching algorithm. तो हमें इसको इसमें सर्च करना है, वेरी सिंपली यू कैन यूज Z, we had discussed Z, ABC लगाओ, डॉलर लगाओ, Z चला दो, so it will find either 3 either 1, बाकी सब पे जीरो इट विल फाइंड, एंड देन यू विल गेट द जी वैल्यूज लाइक दिस, एंड you can see that यहाँ मैच होगा, यहाँ मैच होगा। Z algorithm is what you use. If you don't know what Z algorithm is, like you will have to know some string algorithms already, right? So CP algorithm is the place that you can go to, ठीक है? Z algo, Z नहीं को मिल जाए यार, हाँ Z function, ठीक है? So it basically calculates the Z function for something कि ये कहाँ मैच कर रहा है। There is this standard algorithm which you can use directly. I discussed this in the last, मतलब लास्ट वाले मीट पे, लास्ट वाले मीट पे we had solved right, one problem where we had z this, yes, तो उस पे मैंने डिस्कस किया था ये चीज लास्ट वीक। लास्ट वीक्स लास्ट क्वेश्चन वाज आल्सो z एल्गोरिथम। बहुत स्ट्रिंग पूछ रहे हैं आजकल।
और कुछ बनाया नहीं जा रहा उनसे लग रहा है। कुछ भी उठा के जी डाल दो उसमें। हाँ, लास्ट वीक सबने प्रैक्टिस कर लिया होगा। हाँ, z and kmp are equal in power. In fact, a very beautiful problem is, given the z array of a string, find its kmp array without getting the string, without forming the string. Given a string whose z array is given to you, find its kmp array. This is a very beautiful problem. Maybe someday we'll take it up. Okay. This is, I think this came in some Russian Olympiad, I remember. But anyways, अभी हम इस पे नहीं जाते। This is a fairly interesting question. ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत बार दिखता है, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स यू विल से कि अच्छा तुम्हें एक ऐसे वेव दिया हुआ है, लाइक यू आर गिवन अ ग्राफ लाइक दिस, कि यहाँ पर एक पॉइंट था, ये ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया, एंड सो ऑन। एंड तुम्हें सर्च करना है कि इस ग्राफ में ऐसा कितने बार हुआ है एग्जैक्टली exactly. तो कुछ नहीं करते, लाइक हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सी समथिंग लाइक दिस, तो यू विल सी दैट एक बार इधर देखो। द वे यू डू दैट इज यू लुक एट गैप्स, कि दिस इज +3 -3 +3 +3 +3 -3 -3 +3 +1, let's suppose 0 -1 0 +3 minus, ऐसा कुछ था, तो build on gaps and then KMP match this over here, right? So this kind of pattern is very, very common. Another problem I think should be here, if I remember this correctly, I'll check once. I'll show that because it's a very similar problem. Same ही question है, सब बस disguise वही है, KMP or string matching in disguise. If you guys understand that, I'll check once if I can get it. है ना, this is another problem. This is there as of now on mac.in. You guys can check it थोड़ा देर के लिए. This is there. You can have a look at Z and stuff. तो इस पे एक जॉर्नी करके क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है. दिस यू कैन सॉल्व आफ्टर टुडेज क्लास. ये ट्राई करना. एवरीबडी हु इज देयर, दिस इज, यू कैन, आई थिंक यू कैन एक्सेस दिस एज ऑफ नाउ फॉर फ्री. दिस इज अवेलेबल टू एवरीवन. ये क्वेश्चन आज ट्राई करना. इसके बाद इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी. ठीक है, अब जो नाम है, ये कोडिंग टेस्ट क्वेश्चन इनफैक्ट, बाय द वे. व्हाई इज देयर नो सैंपल आउटपुट? ठीक है, इग्नोर कर दो इसे, सैंपल आउटपुट को, है. ठीक है, जो भी ये निकल जाएगा कोड से, 0 होगा आई थिंक. पास कर जाएगा, सबमिट करोगे तो, डोंट वरी. इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. एंड it's on the same concept, by the way, Shubham. This is same concept. तुम्हें जॉर्स मैच करने हैं अगर एग्जैक्टली, तो पेयर वाइज नेबर जॉर्स मेंटेन करना एंड डू स्ट्रिंग मैचिंग ऑन इट, समथिंग लाइक दैट. वेरी गुड क्वेश्चन. ये आज ट्राई करना जा करके. Okay, so I think pretty much these are the things that was there in today's contest. I don't think I have anything more to discuss. You can have a look at this structure. This should give you enough idea. One very interesting application of KMP that you all should know is period of a string, कि ये कैसे निकालते हैं. This is very important. Another string implication जो नहीं पता तो नहीं हो सकता है तुमसे, टेस्ट में तो कभी नहीं होगा. ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व कर लेना. Cool. ठीक है, this will move very very soon to this प्रीमियम वाला पार्ट, तो यू कैन सॉल्व इट टुडे इटसेल्फ. क्या क्वेश्चन है इसमें? लीड कोड का ही तो है ये शायद. चेंज LR बैलेंस्ड इफ you are given 0 index numbers num1 2 num1 and num2 of length n. क्या है?
हाँ, इंक्रीमेंटल नैपसैक बनाना है, इसमें क्या मतलब नैपसैक सॉल्व करना है बेसिकली, लाइक फॉर एवरी आइटम यू हैव अ चॉइस दैट वेदर यू वांट टू, मतलब इसमें बेसिकली वही मेंटेन करना है दैट फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट इफ यू आर बिल्डिंग द नैपसैक, तो तुम्हें फॉर एवरी स्टार्टिंग आई यू कैन बिल्ड टिल जे इंक्रीमेंटली यूजिंग नैपसैक, तो सबके लिए आंसर मिलता रहता है कि सम बाई टू बनेगा या नहीं बनेगा, लाइक यू हैव आइदर नम्स वन और नम्स टू टेकन, कैन यू मेक हाफ एग्जैक्टली और नॉट। इसे मल्टी LRDP नहीं है ये, दिस इज नॉर्मल नैपसैक फॉर एवरी स्टार्टिंग पॉइंट दैट यू हैव टू सॉल्व। हर स्टार्टिंग पॉइंट से आगे तक नैपसैक सॉल्व करो, जहां मतलब यहां तक नैपसैक सॉल्व हो गया तो इसमें सम बाई टू बनेगा नहीं कि वो डीबी में सीधा मिल जाता है, फिर इंक्रीमेंटली एक और एलिमेंट ऐड करो, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट चेक करो फिर से हाफ, मतलब जो भी अभी तक का सम बन सकता है, कोई इक्वल सम बन सकता है नहीं बन सकता बेसिकली। So if you take these elements on one side, you know what all elements will be taken on the other side. तो वो चीज मेंटेन करना है बेसिकली इसमें, कंस्ट्रेंट देखने पड़ते हैं, मतलब ये क्या दे रहे हो मुझे तुम, सीधा लीड कोड का प्रॉब्लम दो भाई। उफ, क्या हो गया भाई, ये क्या प्रीमियम प्रॉब्लम है क्या? ओके, मेक सेंस, ठीक है, ये रहा यही क्वेश्चन है। वही करा है, इंक्रीमेंटल नैपसैक बिल्ड करते गया फॉर एवरी स्टार्ट, as you go on you keep building this and then you keep adding the answer, सम बाय टू ऐड करते जाओ। ओके, चलो देन आई थिंक दिस वुड बी इट फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन देन, ठीक है, बट आई होप क्वेश्चंस करके कुछ तो समझ में आया होगा। दैट ऑड वन वाज फेयरली इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे भी अब करके लग रहा है कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया था, मैंने भी अच्छा ही सोच लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद चल लेते हैं। चिल स्ट्रीम और जूम, नो नो नो, इट विल बी ऑन दिस, सो लाइक जूम पे नहीं है, सो आई बेसिकली सेंड द शेड्यूल, तो बेसिकली इट गॉट शेड्यूल्ड ऑन जूम बट वो यूट्यूब पे ही होगा, आई हैव नॉट क्रिएटेड इट ऑन यूट्यूब येट, तो आई क्रिएट इट एंड ऐड इट ऑन द लिंक, ठीक है। चिल स्ट्रीम अब से लाइक यूट्यूब, चिल स्ट्रीम जूम पे करने का कोई पर्पस नहीं बनता मेरे को लगता है, यूट्यूब पे ही करते हैं, राइट, सो विल डू इट ऑन यूट्यूब, सो आज टुमारो टुडे एंड 10 o'clock पे विल कीप इट, आज 1 hour ही रखेंगे, लाइक चिल स्ट्रीम्स लेट्स नॉट एक्सटेंड इट लाइक इंडेफिनिटली, 1 hour टाइप का टाइम रखेंगे एंड देन विल रैप इट अप, मेजरली रीजन बीइंग कि मेरा 11 बजे एक मीट है, बट देन आई कैन डिले इट अ लिटिल बिट, बग बैश है बेसिकली, सो 11 o'clock आई हैव अ बग बैश ऑन द न्यू साइट। तुम लोगों ने नया साइट यूज देखा है अभी तक, mang.in वाला? डू चेक आउट दैट, इट्स फेयरली गुड, एंड उस पर भी बहुत चीजें आने वाली है, नॉट जस्ट कोर्सेज, कोर्सेज तो ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए तो मटेरियल रहेगा ही, मेनली कोर्सेज वाला पोर्शन इज फॉर पीपल हु आर लाइक डूइंग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग इन इट, बट देन मेनली जो अभी इसके बाद आने वाला थिंग्स ओवर हियर विच विल बी फेयरली हेल्पफुल, एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु हैवंट सीन दीज, मतलब मेरे को तो लग पीपल डोंट यूज इट मच, बट देन इट्स लाइक गोल्डन नगेट्स टू सम डिग्री, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लोगों के, ठीक है, तो चेक आउट द कोडिंग टेस्ट के एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस, लोगों के एग्जैक्ट इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस, अलग अलग कंपनी में जो टेस्ट में पूछा गया है, रेजर पे में इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया है लोगों को, तो प्रॉपरली क्वेश्चंस के साथ एडेड ही है सारे के सारे, राइट, ठीक है, 2023 वाले ओवर टाइम ऐड हो जाएंगे, मतलब एडेड ही है बट बस अनलॉक नहीं है अभी तक काफी सारे, तो ऐड हो जाएंगे वो, बट देन वही है कि देयर इज लाइक लॉट ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ओवर हियर जो तुम लोग अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो, तो लाइक ग्रेविटॉन वेविटॉन के तुम्हें एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे से मिलेंगे भी नहीं लोगों के कि क्या पूछा गया था क्वेश्चन में एग्जैक्टली, ठीक है, तो हैव अ लुक एट एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन सच कंपनीज एंड क्या क्या कर सकते हो, तो दिस इज लाइक देयर ग्रीडी के लिए रिसोर्स, ग्रीडी के लिए भी ऐसा रिसोर्स नहीं है यार, आई डोंट हैव एनी लाइक रिसोर्स नेम फॉर ग्रीडी, सॉल्व द सीएसएस वाला का भी सेक्शंस जो है वो तो अच्छा है, बट
ऐसा कोई सेक्शन नहीं है ग्रीडी का. I'll there is like lot of different interesting ideas that exist, but then ऐसा कोई सेपरेट आइडिया नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज बेसिकली एन आइडिया विच टेल्स कि अभी तक के बिल्डेबल नंबर ऑफ बिल्डेबल जॉर्स आर ऑलवेज लॉग इन फॉर एवरी स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, इसमें ये आइडिया यूज करना पड़ता है. दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम. ठीक है, कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जॉर्स सिर्फ लॉग इन पॉसिबल एवरी स्टार्ट पे. दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. मतलब इसमें इसको सॉल्व करने का बहुत ही लाइक छोटा सा कोड हो सकता है. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई विल सजेस्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन फैक्ट आफ्टर द सेशन. अ वेरी गुड प्रॉब्लम. ठीक है, मतलब कर तो सकता हूं मैं इसको सॉल्व. कुछ करने का है नहीं इसमें कि अगर मैं इसमें सेट ऑफ इंट आंसर्स बना दूं जो भी आंसर्स है और सेट ऑफ इंट पॉसिबल. ठीक है, पॉसिबल में एक एम्प्टी रखूंगा अभी. सो फॉर ऑटो वी इन ए आर आर. ठीक है, सारे एलिमेंट पे इटरेट करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, जो अभी तक पॉसिबल थे उन सबको एक्सटेंड करेंगे बाय टेकिंग अ जॉर विद द करेंट आंसर. सो फॉर लाइक वेक्टर ऑफ या फिर सेट ऑफ इंट करंट पॉसिबल इक्वल करंट पॉसिबल. ठीक है, सो फॉर ऑटो वी इन पिछले तक जो भी पॉसिबल था उन सबको एक्सटेंड करके करंट पॉसिबल डॉट इंसर्ट जो करंट वी है और जो पिछले तक का जो पॉसिबल था. सॉरी, वी यहाँ भी है, वी यहाँ भी है, कैसे होगा है ना, इन दोनों को और करके जो बनेगा वो मेरा करंट पॉसिबल है. फिर एक और एक्सटेंडेबल करंट पॉसिबल है विच इज जस्ट दिस एलिमेंट. सो करंट पॉसिबल इंसर्ट वी. तो ये सारे इस एलिमेंट पे जो जो और पॉसिबल है, यूनिक और सारे इसमें आ जाएंगे. एंड देयर विल बी लॉग इन ओनली बिकॉज हर बिट एक बार वन होगा तो उसके बाद वन ही रहेगा. तो देयर इज लाइक ओनली 20 पोजीशंस, जहां 30 पोजीशंस जहां पर फर्स्ट टाइम वो बिट वन होगा उसके बाद वो वन ही रहेगा जॉर में. सो एवरी पोजीशन आई से स्टार्ट करोगे तो जहां तक वो और डिस्टिंक्ट आते हैं देयर आर लाइक ओनली 30 डिफरेंट प्लेसेस. तो यहाँ पर इस सेट में सिर्फ 30 वैल्यूज पॉसिबल होंगे. और ये करने के बाद यू विल डू फॉर ऑटो यू इन करपॉज answer dot insert u possible equal to करपॉज return answer dot size and this should be it I suppose. मतलब ये सब टेक्निक जानने पड़े. दिस इज अ फेयरली स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ लाइक और एंड एक्सटेंडेबल. दिस इज देयर, मतलब मुझे पता है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट के कॉन्टेस्ट में है इंटरनल वाले, तो ये सेम क्वेश्चन दे रखा है. बट देन दिस लाइक fairly good ideas like this that exist. बस हो गया खत्म क्वेश्चन. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वही बोलो ना कि यू आर दिस इज n बट ये पॉसिबल में हमेशा 30 एलिमेंट्स ही होंगे. सो दिस इज n इंटू 30 टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी. n इंटू लॉग ऑफ ए ऑफ आई प्लस सेट का लॉग वॉग ले लो. तीसरी वैल्यू है तो लॉग 30 होगा सेट में, तो इट डजंट कॉस्ट मच. ठीक है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इज कि एवरी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, मतलब हम बेसिकली करते क्या है इसमें, मैं हल्का सा समझा देता हूँ. एवरी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मतलब एंडिंग पॉइंट, सपोज ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज यहाँ पर जितने डिस्टिंक्ट ऑर्स थे उन सबको एक और वैल्यू से एक्सटेंड कर रहा हूं मैं. तो आई एम गेटिंग द न्यू डिस्टिंक्ट. एंड द ऑब्जर्वेशन इज अगर इस बिट पे सपोज 1 0 0 1 0 1 है, तो अगर मैं इसके पहले देखूं तो कभी ना कभी पहली बार यहां पर एक वन आया होगा, इस बिट पे एक वन आया होगा, इस बिट पे एक वन आया होगा. तो अभी तक यहां तक पूरा जोर सेम रहने वाला है. फर्स्ट टाइम यहां चेंज होगा एक बार जब ये बिट वन बनेगा और उसके बाद ये हमेशा वन रहेगा इसके आगे. यहां पर फिर से ये वन बनेगा और हमेशा वन रहेगा आगे. यहां पर ये वन बनेगा और फिर इसके बाद हमेशा वन रहेगा इसके आगे. सो the number of changes that can happen for a particular position is only the number of times it has zeros in its bits. That many number of distinct ORs you will get. तो इसलिए हमेशा इसमें possible ORs 30 होते हैं हमेशा. This is the observation for this problem. Same goes for and or. ये दो चीज के लिए ये सेम प्रॉपर्टी होता है कि हर बिट एक ही बार 0 से 1 होगा या 1 से 0 होगा. That's the observation for this problem. And then this question becomes super easy. प्रीमियम के कोर्स बाय करते सारे टॉपिक समझ से जाएंगे, सीक्वेंशियली अनलॉक होते हैं. कोहोर्ट, सो इफ यू जॉइन द B6 वाला बैच, B6 वाला कोहोर्ट तो सीक्वेंशियली होंगे. इफ यू जॉइन द B5 तो सब कुछ ऑलरेडी, अभी जैसे ग्राफ चल रहा है तो सब कुछ ऑलरेडी अनलॉक्ड ही है.
So you can join the previous batch if you want all in a self-paced manner. That is generally what I suggest. But sequentially unlock होता है, वो B6 है, वो B6 है, उसमें कोड sequentially unlock होगा. बट बहुत सारे लाइक ऐसे कोर्सेज जो है जो प्रीमियम में आई थिंक है, अभी तुमने देखा होगा साइट पे, तो वो तो पहले से अनलॉक हो जाएंगे. मतलब ये जो इधर जैसे ये ग्राफ हो गया, ग्राफ का भी जैसे वीक में ऐड हो रहा है अभी ओवर टाइम, बट ये रिकर्शन मतलब जो जो प्रीमियम में वो सारे एक साथ ही अनलॉक हो जाएंगे. वैसे और भी अभी ऐड हो रहे हैं, बट देन वो चीजें अनलॉक हो जाएंगी. B5 ज्वाइन करने के लिए हमारे पुराने साइट पे जाना पड़ेगा, विच इज algozanit.com. उस पे जो प्रीमियम है वहां पर B5 का एनरोलमेंट है. दिस वाज लाइक समथिंग दैट स्टार्टेड ऑन 4th वाला चीज पे, 4th दिसंबर पे. तो उस पे ऑलरेडी लाइक क्लासेस हो गई है. अगर खुद से सेल्फ पेस करना है तभी करना, नहीं तो फिर मत करना. ठीक है. ठीक है, तो दिस इज वन. एंड एक तो दूसरा जैसे जो नया बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर प्रॉपर्ली लाइव करना है, इफ यू हैव इंटर्न प्लेसमेंट्स नेक्स्ट ईयर या इस ईयर के एंड पे, देन यू शुड जॉइन द न्यू कोर्ट आइडियली. क्योंकि एजेड इतना इजी नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऐसे फेंका हुआ क्वेश्चन जो तुम वीडियो देखे और क्वेश्चन हो जाएगा, वैसा तो नहीं है क्वेश्चन. ठीक है. मतलब एक एक क्वेश्चन करने में तुम्हें बहुत सीखना पड़ेगा और बहुत ज्यादा वो है, मतलब थोड़ा मेहनत है. बट हाई लर्निंग, मतलब 3 लीड कोड के बराबर एक प्रॉब्लम होगा. 2 hours 1 क्वेश्चन. हाँ, जो स्टूडेंट्स है वो तो दर्द जानते ही है ना. कितने लोग +1 क्विक +1 जो लोग दर्द जानते हैं. ठीक है. बट टेक्निक्स भी वैसे ही सीखते हो, मतलब एक एक प्रॉब्लम में तो टेक्निक भी वैसे ही सीखते हो, वो भी तो है. इतना क्वेश्चन फालतू का करके फायदा नहीं है, 1000 प्रॉब्लम करके कुछ नहीं होता है. 300 प्रॉब्लम करेंगे बट उसमें वो रहता है, दैट इज द थिंग. हाँ, mang.in भी मिलेगा, बट बस कोहोर्ट नहीं मिलेगा. ओवर टाइम वी आर गिविंग बोथ अभी के लिए, बट देन इस बार का जो एक कोहोर्ट स्ट्रक्चर रहेगा डे वाइज, वो नहीं मिलेगा. बस दैट्स इट. मतलब वो भी मिल जाएगा आई थिंक. हाँ, डेप्थ वो रहता है. मतलब जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रिंग के दिखाया, उस पर तुम समझोगे कि जो क्वेश्चन करो समझ में आएगा कि स्ट्रिंग आते हुए भी मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है. ठीक है. बाय द वे, अभी इसमें चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें प्रीमियम में मूव कर जा रही है, सो यू कैन चेक कि क्या क्या अभी तक फ्री में है. कुछ नया नया चीजें भी आ रही है विच यू कैन कंज्यूम इमीडिएटली इफ पॉसिबल. दिस इज नॉट ऑन मी कि मैं डिसाइड नहीं करता हूँ कि क्या प्रीमियम में मूव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आई हैव टेकन माई सेल्फ ऑफ दैट पार्ट. हाँ ठीक है. Okay then. Chalo, फिर this is something I'll wrap up for today. We'll meet again in the next meet, and like this will be the place where we'll kind of keep it till. Okay, at least let's stop the recording.